In the last lecture, we have discussed mean, different methods to calculate the mean. Now we will continue. Now second one is median. What is median? As we discussed earlier, the mean is the sum of terms and divided by the number of terms. If discrete data is given, and we have discussed assumed mean method. In assumed mean method, we have assumed a value, a middle value, okay, and we have subtracted the assumed mean from each value of x. Then we have find the mean by using assumed mean method. Then we have discussed mean by using step deviation method. Okay. Now next is median. The median is the middle value. Okay. Again, the value that separates the higher half from lower half of a data set when arranged in order. Arranged in order means we have to first arrange our data in increasing or decreasing order. Okay. First, we will arrange our data in increasing or decreasing order. Then we will separate the data. Separate कैसे करना है? If a data is, suppose odd number of terms are given, then we will separate the data. Okay, suppose 9 terms are there, 4 terms हम left hand side छोड़ देंगे, 4 right hand side, and the middle term will be the median of the given data. Now, why we use median? Robust to quantify, like unlike mean, median is not affected by extreme values. Better for skewed data. Skewed data क्या होता है? Suppose if we draw a graph, next lecture में skewness आपको समझाऊंगी. If we draw a graph, mostly जो हमारी terms हैं वो if terms are towards the right side or towards the left side, किसी एक side हो, if maximum terms are towards the right side, or we can say a longer tail towards the right side of the graph, then we will say that a data is positively skewed. If most of the terms are in the left hand side, that is, if longer tail is towards the left of the graph, then we will say that a data is negatively skewed. Okay. The skewness is there, that is uneven distribution of data, and it is useful for ordinal data. It can be used with ranked ordered categories. Now, if data is discrete, that is only simple terms are given, and if number of terms are odd, then middle term is the median. But if number of terms are even, then we will choose middle 2 terms and we will find the mean of that 2 terms. हमने क्या करना है? तो सेंटर वाली 2 terms होंगी if number of terms are even. Suppose 10 terms are there. ठीक है, तो अगर हम 5 छोड़े तो सेंटर में तो कोई टर्म नहीं बची. So we will क्या करेंगे? हमने 4 terms left hand side, 4 terms right hand side. The middle terms कौन कौन सी होगी? 5th and 6th. Then we will find the average value of 5th and 6th, that is 5 plus 6 by 2. That will be the median. Now, but if suppose this is the example, students are there, hours are there, sorted hours are there. Again, formula is n by 2 and n by 2 plus 1. वही आ गया आपका. N is equal to 6. Number of terms are 6. That is okay. So middle terms are 3rd and 4th. 3rd and 4th term कौन कौन सी हुई? Values are 5 and 6. Then median is 5 plus 6 by 2. That is 5.5 hours. Again, suppose if class intervals are given, then we will find the value of x by adding lower class interval and upper class interval by 2. Okay. तो यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू गिवन है,
frequency is given, then first we will find the cumulative frequency. How we will calculate the cumulative frequency? Like देखो first 10 है, first we will write the 10 in the third column, first term. Okay. The first frequency is 10. We have written 10 in the cumulative frequency column. Okay. Then we will add next term, that is next frequency, which is 15. Okay. We have added 15 in 10. Then we will get 25. Next in the 25, we'll add next frequency, that is 20. Then we will get 45. Again in 45, we will add 12. We will get 57. And 57 we will get add 8. We will simply frequency को भी add करते हो. You add all the terms in the second column, we will get 65, and also the last value of cumulative frequency is also 65. यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो cumulative frequency, हमारी calculation जो है वो सही है, right है. क्या किया? First we will write the first frequency as it is in the third column. उसके बाद next term उसमें add करते जाना. Next frequency we have added 10 in 15. 15 plus 10 is equal to 25. Then we added 25 plus 20, 45. 45 में 12 add किया, we'll get 57. 57 plus 8 is equal to 65. So this is the cumulative frequency. Now to find the median, this is formula is n plus 1 by 2. Okay. और आप सिंपली वही कर सकते हो, मिडल दो टर्म्स ली. We have to find the average value. Now locate median class. Now median class कैसे locate करनी है? Okay. We have to choose one class from this data. Now we have to select one class interval or one median class. उसके लिए हम क्या करेंगे? We will find the value of n by 2 or n plus 1 by 2, depends upon the terms are even and odd. Okay. Now here we have calculated. Now n is sum of frequencies, which is equal to 65. In the first step, small n is sum of frequencies. Summation f means we have to add all the values of column 2, which is equal to 65. Now median position कितनी आ गई हमारी? 65 plus 1 by 2, that is n plus 1 by 2, which is equal to 33. It means we will locate median class, that is we will select class interval और cumulative frequency. In इस केस में क्या आ जाएगा आपका? cumulative frequency which is next greater than 33. जो हमने median class choose करी है 33 आया है, तो next जो cumulative frequency है इससे next greater तो काफी सारी होंगी, but next greater is 45, which is the third term in the cumulative frequency. Now family size कितना इसमें आ रहा है? 4 आ रहा है. Therefore median is equal to 4 persons. ऐसे ही suppose class intervals are given. If a range is given, a range given हुई है 1000, 2000, 2000, 3000. Range given है, frequency given है. We have to find the median. Again we will calculate the cumulative frequency. Cumulative frequency कैसे find करें? At the first frequency 15 को as it is लिख लिया. Class intervals को बाद में देखते हैं हम. ठीक है. First we will calculate cumulative frequency. Third column calculate करना है. पहले वाला ऐसे लिख लिया. Next add next frequency, that is 25. 25 plus 15 equal to 40 आ गया. Next 40 में 30 add किया, which is equal to 70. 70 में 20 add equal to 90. 90 में 10 add किया, which is equal to 100. Okay. Now all the terms in the second column में जो frequency है उसको add करो, you will get 100, which is the last term of cumulative frequency. जो last term है cumulative frequency की 100. तो अगर हम frequencies को add करें, again we will get 100. Okay. Now if class intervals are given, a formula will be L plus n by 2 minus C upon F into H.
सी भी लिख सकते हो, सी एफ लिखा है इसमें, सी एफ लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कोई भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो। अगेन ऐसे बुक्स में स्मॉल एन भी मेंशन होता है, कैपिटल एन भी मेंशन होता है किसी बुक में, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आप स्मॉल एन और कैपिटल एन किसी से भी डिनोट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज एल? L is the lower class interval or lower boundary of median class. Like in the first class interval, a range is 1000 to 2000. Okay. So lower class interval is 1000 and upper class interval is 2000. Okay. And in the second 2000 to 3000, our lower range is 2000, upper range is 3000. Now L means lower range. Okay. So L, we have to write the lower range or lower boundary of the median class. Okay. So lower boundary लिख ली. Next, N, small n is the total frequency which is equal to 100. CF is the cumulative frequency. Small f, second column से लेना है हमने. Small f is the frequency of median class. H is the width of class interval. Okay. और you can say the distance of class interval. ये step deviation उसमें भी करा था हमने. स्टेप डेविएशन मेथड जो मीन फाइंड करने के लिए किया था. व्हाट इज एच? एच इज द डिफरेंस दीज क्लास इंटरवल्स, कितने कितने का डिफरेंस है, ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज किस में पुट होंगी? व्हाट इज एल? इसमें तो कितने सारे क्लास इंटरवल्स है, तो एल कौन सा लेना है? इट मींस फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट वन क्लास इंटरवल. ठीक है, तो एक क्लास इंटरवल वी विल चूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग विल put all the values. उसके लिए हमने क्या किया? we will find the n by 2. n by 2 means n क्या था? small n is the sum of frequencies. तो sum of frequencies को 2 से डिवाइड किया, 50 आ गया. अब फिर से टेबल देखो. now we will see the cumulative frequency. तो 50 से नेक्स्ट ग्रेटर cumulative frequency कौन सी है? नेक्स्ट ग्रेटर इज 70. अगर वैसे ग्रेटर देखोगे तो आप 70, 90, 100 ऑल आर ग्रेटर, तो नेक्स्ट ग्रेटर इज 70. इट मींस वी विल सेलेक्ट अ क्लास इंटरवल. एक क्लास इंटरवल हमने चूज कर लिया विच इज 3000 टू 4000. कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके? 30 है. स्मॉल एफ इज 30. नाउ वी विल substitute all the values corresponding to this class interval. Now our L will be, L is the lower boundary of median class which is equal to 3000. Next, N total frequency 100 if put होगी. CF क्या आ जाएगा? Cumulative frequency of preceding class. okay. CF कितना आएगा? 40. Because अभी आप बोलोगे 70 हमने लिया है टू सेलेक्ट आवर क्लास इंटरवल. 70 इज n by 2 से नेक्स्ट ग्रेटर टर्म. ठीक है, तो वो हमने 70 लिया है. 70 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लास इंटरवल चूज किया है. बाकी सारी वैल्यूज इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोगे, बट जो CF है यू विल सेलेक्ट द CF फ्रॉम प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 40. तो C जो आपने लेना है वो पिछले क्लास इंटरवल का लेना है. तो n by 2 50 आ गया. मीडियन क्लास 70 थी. रेंज हमारी कौन सी होगी? 3000 to 4000. Therefore L is equal to lower class interval is 3000. CF cumulative frequency is 40 which is preceding class की जो cumulative frequency है. Small f frequency of model class जो हमने select की है उसी की वैल्यू लेनी है. H is the distance between class intervals which is 1000. तो वैल्यूज पुट कर दो, you will get the median. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट इज मॉड. मॉड क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. सपोज 10-15 टर्म्स आर देयर, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट विल बी द मॉड ऑफ डिस्क्रीट डेटा. तो व्हाट इज मॉड? द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज द मॉड. व्हाई वी यूज इट?
it shows where data is concentrated. Only measures applicable for nominal data only. It helps to identify most popular product or most popular choice. Next क्या है? For quick assessment, that is fastest measure to calculate for some data types. मॉड भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया था. Now a data set is given 5 4 3 5 4 5 4 5. फर्स्ट वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं? रेटिंग दे दी हमने 1 2 3 4 5. कितने काउंट्स हैं? 1, नो 1 इज देयर, नो नंबर 1 इज देयर. 2 कहीं पे नहीं आ रहा. 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2. फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 2. 3 जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. काउंट्स ऑफ 3 इज 2. नेक्स्ट टर्म इज 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? आप डाटा में से चूज कर सकते हो 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जो 5 जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसकी रिपीटिशन सबसे ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई 5 विल बी द मॉड ऑफ दिस डेटा. For group data, suppose shoe size is given, quality sold is given. Okay. Now identify highest frequency. 6 नंबर के शूज जो हैं 10 पेयर उसके सोल्ड हुए हैं. 7 नंबर के शूज के 25 पेयर्स हमने सेल किए हैं. 8 नंबर शूज के 40 शूज हमने 40 पेयर जो है वो सेल किए हैं. 9 नंबर वाले 30 की सेल हुई है. नेक्स्ट 10 नंबर वालों के 15 की सेल हुई है. अब सबसे ज्यादा सेल किसकी हुई है? 8 नंबर वाले शूज की सबसे ज्यादा सेल है. 40 पेयर्स बेच दिए हमने. ठीक है. तो इट मींस मॉड कितना हो गया हमारा? 40 हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. अगेन फॉर ग्रुप डेटा मींस इफ क्लास इंटरवल्स आर गिवन, अगेन रेंज इज गिवन. रेंज क्या है? 0 to 20 के बीच में स्कोर रेंज दे दी हमने. 0 to 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. 20 to 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स आर देयर. 40 to 60 में 25 स्टूडेंट्स आर देयर. 60 to 80 में 18 स्टूडेंट्स आर देयर. एंड 80 to 100 में 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉड फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं. Now our formula is L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is a formula to find the mod. अब ये कैसे फाइंड करना है? Again we will select one class interval. एक क्लास इंटरवल चूज करना है. अब वो कैसे चूज करना है? इसमें कोई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड करनी. We will select the highest frequency. तो highest frequency इसमें कौन सी है? 25 है. तो it means we will select 40 to 60 range. okay? तो एक हमने क्लास इंटरवल चूज कर लिया 40 to 60, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 25 है. okay? Now according to formula L is again a lower class interval, that is lower boundary of model class. F1 is the frequency of model class. okay? जो हमने क्लास चूज करी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको हमने F1 से डिनोट कर दिया. F0 is the frequency of preceding class. जो हमने सेलेक्ट करी है उससे पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है. एंड F2 is the frequency of succeeding class, that is frequency of class after model class. तो क्या है? L is the lower boundary, F1 is the frequency of model class जो हमने सेलेक्ट की है. F0 उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी. F2 is the नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी. H is the class width. In the data 25 is the highest frequency. So 40 to 60 is the class interval. Therefore L is equal to 40. F1 से हमने डिनोट किया है frequency of model class which is 25. F0 preceding class की frequency कितनी है? F0 is 12. F2 frequency of succeeding class which is equal to 18.
डिफरेंस कितना कितना है क्लास इंटरवल्स का, 40 to 60, 60 to 80, सभी में 20 20 का, इट मींस h हमारा कितना हो गया 20। ये सारा कैलकुलेशन मैंने इसमें लिख दिया। मॉडल क्लासेस 40 to 60 है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 है, विच इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। L40, F0 सीडिंग क्लास 12, F1 25, F2 18, H is 20। तो सारी वैल्यूज पुट कर दोगे इसमें, यू विल गेट द मॉड फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। What is standard deviation? Standard deviation is a statistical measure that tells us how much the data values are spread out from the mean. Suppose one data is given. अब data से suppose 100 200 values are given in the data, ठीक है। तो डेटा जो एवरेज वैल्यू से कितना स्प्रेड हो रखा है, ठीक है, कम स्प्रेड हो रखा है या ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, वो हमें कहां से पता चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन टू चेक द डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से स्प्रेड ऑफ डेटा, ठीक है। तो सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज स्मॉल, अगर उसकी वैल्यू कम आती है तो इट मींस डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन, मीन के नजदीक है, ठीक है। और इफ large standard deviation is, then data values are widely spread, it means data values हमारी ज्यादा spread हो रखी है। suppose 10 students are there, 100 में से हमने इसको मार्क्स देने हैं, तो एक बच्चे के 10 नंबर है, दूसरे के 40 है, तीसरे के 90 है, तो क्या हो गया, ज्यादा स्प्रेड हो गया। अगर मीन हम कैलकुलेट करेंगे तो मीन से काफी ज्यादा स्प्रेड हो रखा, तो उसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन विल कैलकुलेट, दैट विल बी लार्ज। तो लार्ज वैल्यू मीन्स data values are widely spread. Small standard deviation means data values are close to the mean. तो कहाँ पे यूज होता है, ऑब्वियसली इट्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, तो जहाँ पे भी आपका रिसर्च का काम होगा, जहाँ पे डेटा से डीलिंग होगी, ठीक है, तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होगा। फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट स्टेप इज वेरिएंस। यू कैन फाइंड वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएशन आ जाती है वहां से, ठीक है। तो अभी पहले स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कैसे करना है, सपोज अ सिंपल टर्म्स आर गिवन, सपोज वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे मैंने रैंडमली ले लिया। लेट मार्क्स obtained by 5 students at 10 12 14 16 18, देन फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या हो गया, सिंपल डेटा है, मीन इज सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो मीन हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला वही जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, x बार इज समेशन x बाय n, तो समेशन x इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो समेशन x क्या है, सबसे पहले हमने सभी टर्म्स को ऐड कर लिया, तो सम कितना आ गया इसका 70 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 5 पे डिवाइड कर दिया, मीन इज 14। मीन तो कैलकुलेट कर लिया हमने 14। नाउ वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज टर्म्स। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x। x क्या है, जो हमें डेटा गिवन है 10 12 14 16 18, इसको कॉलम वाइज लिख दिया हमने, ठीक है। 10 12 14 16 18, ठीक है। देन वी विल सब्ट्रैक्ट x बार, दैट इज मीन फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x। x की सारी वैल्यूज में से x बार को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सभी वैल्यूज को माइनस कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव का अगेन यहाँ पे आपको केयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी विल फाइंड द x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ से जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करोगे, ऑब्वियसली जब स्क्वायर कर दोगे तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। देन वी विल फाइंड द समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मींस थर्ड कॉलम का हमें सम फाइंड करना है। क्या करोगे, x is given, first we will find mean, mean is sum of terms upon number of terms, mean आ गया हमारा 14,
अब 14 को हमने सारी वैल्यूज में से 14 माइनस कर दिया, 10 में से 14 माइनस कर दिया, 12 में से 14 माइनस कर दिया, 14 माइनस 14, 16 माइनस 14, 18 माइनस 14, सभी में से 14 को माइनस कर दिया, दैट इज x माइनस एक्स बार। उसके बाद x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, देन फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म्स। नाउ आवर फॉर्मूला इज summation x minus x bar whole square upon n under root। क्या किया हमने, summation x minus x bar whole square already we have calculated, which is equal to 40। तो 40 upon number of terms are 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, √8 which is nearly equal to 2.83। तो our standard deviation is 2.83 and mean is 14। तो मीन 14 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83 है, तो 2.83 ऑब्वियसली लेस टर्म है, इट मींस डेटा इज क्लोज टू द मीन, और डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन, दैट इज स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन इज देयर। सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारी ज्यादा आ जाती, 20, 30 इस टाइप से आ जाती, इट मींस वैल्यूज आर वाइडली स्प्रेड। Now, why we use standard deviation? Standard deviation helps researchers to understand the variability or consistency of data। हमारा डेटा कितना वेरिएट कर रहा है, कितना वेरिएबल है, कितना वेरी कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये पता चल जाता है। Now, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? It measures the consistency। If data values are close to mean, again, then results are more reliable। Again, वही चीज आ गई, suppose a large population is there, we have selected a small sample, एक small sample हमने चूज कर लिया, और उस पे हमने अपना उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेट किया, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मिनिमम है, तो इट मींस क्या हो गया, डेटा जो है नियरली इक्वल टू मीन है, देयरफॉर इट मींस आवर सैंपल इज रिलायबल। तो हमारा सैंपल सही है, तो हम उसको लेके नेक्स्ट अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है, कैलकुलेशन जो भी करना है आपने वो कर सकते हो। So it measures the consistency like student marks, experimental observation, survey response। It also helps to compare the data। Suppose two data sets may have same mean, mean की वे भी हो सकता है, suppose two data sets are there, mean उनका same आ जाए, ठीक है, but different spread means standard deviation is different। Suppose two classes may both have average mark 70, but the class with lower standard deviation has more consistent performance। जिसमें standard deviation कम है, that is more consistent, जिसका standard deviation ज्यादा है, that is highly consistent। It is used in hypothesis testing। hypothesis testing में ये आपका अगेन वही, सपोज a large population is there and we have to do our experiment, but population का साइज ज्यादा है, तो उस पे वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, then we will select one sample। तो सैंपल पे, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है which test we have to apply, is that test, F test, chi-square test, ANOVA test, regression analysis, depends upon our sample। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट जो करते हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का ये आपको चैप्टर डिफरेंट आएगा, उसमें ये टॉपिक्स आएंगे, टी टेस्ट वगैरह। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होता है। इट आल्सो डिटेक्ट्स वेरिएबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज इट इज यूज्ड इन physics experiments, medical research, economics, cosmology, data analysis। Like for in cosmology research, scientists analyze variation in observational data using standard deviation। So where is standard deviation is used? Like in education, where it analyze student performance, in economics to study market fluctuations,
And in medical research, it measures variation in patient data. In physics, to analyze experimental errors. And in data science, to evaluate data spread. And in social science, in survey analysis. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं. डिपेंड्स अपॉन योर टॉपिक. These are some practice problems. ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके देखना है. इसी से मीन, मीडियन, मोड, ये चीजें भी कैलकुलेट कर लेना. नाउ थोड़ा सा थ्योरेटिकल करते हैं. नाउ व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो भी आपका टॉपिक है, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट वन क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसको आपने सॉल्व करना है, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे. तो व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन. A research question is the main question your study wants to answer, जिसका आंसर आप अपने रिसर्च पेपर्स के थ्रू दोगे. ठीक है, इट गिव्स यू डायरेक्शन, फोकस एंड पर्पस टू योर रिसर्च. ठीक है, तो जब तक हमें ये नहीं पता हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो हमें क्लियर नहीं होएगा व्हाट वी हैव टू डू, हमारा हमने क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, हमारा फोकस ही क्लियर नहीं होएगा. तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट आवर रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन के लिए अगेन यू विल सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स में से फिर एक फाइनल सब्जेक्ट करो, उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो. तो उस टॉपिक से आप जो है रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ोगे, वहां पे रिसर्च गैप यू विल सेलेक्ट. रिसर्च गैप से यू विल फाइंड योर रिसर्च क्वेश्चन. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया ये सारा. तो रिसर्च क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, उसमें जो आपको टॉपिक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर लो. उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर गूगल में डाल दो, सेम टॉपिक कीवर्ड्स डाल दो उसके, यू विल गेट काफी सारे आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे. रिसर्च पेपर्स को ओपन करके देखो, रीड एब्स्ट्रैक्ट फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है. एब्स्ट्रैक्ट से आपको नॉलेज हो जाएगी, इतना पता चल जाएगा कि इस पेपर में क्या काम हो रखा है, इट इज रेलेवेंट टू योर टॉपिक और नॉट. इफ इट इज रेलेवेंट टू योर टॉपिक देन चेक द कंक्लूजन रिजल्ट्स, वो फाइंड करो. अब ऐसे 4-5 पेपर पढ़ोगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज इन्होंने मिस कर दी है. ठीक है, जो उन्होंने मिस किया है, जिस चीज में डिस्कस नहीं किया, दैट इज द रिसर्च गैप. और रिसर्च गैप क्या है, नाउ दैट रिसर्च गैप विल बी द रिसर्च क्वेश्चन फॉर न्यू रिसर्च. तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड. ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में मिल जाती है अब हमने काम क्या करना है. इट गाइड्स योर रिसर्च डिजाइन. इट हेल्प्स टू कलेक्ट रेलेवेंट डेटा. इट अवॉइड्स अननेसेसरी वर्क. अब हमें अगर पता ही नहीं, अगर एक क्लास में हमें खड़ा कर दिया जाए कि इसको पढ़ाना है, ठीक है, अब उसको क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये हमें बताया ना जाए तो क्या पढ़ाएंगे उसको. कभी एक, कभी दूसरा, कभी किसी के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, कभी दूसरी चीज के बारे में बता दोगे. ठीक है, अगर हमें क्लियर है कि आज हमने क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमें फिजिक्स पढ़ानी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाना है, तो उसका ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो एक फोकस मिल गया हमें. तो हम उसके बाद में क्या है जो पढ़ोगे आप, अच्छा एक लेक्चर डिलीवर करोगे आप. तो सेम ऐसे ही इन रिसर्च ऑल्सो, अगर हमारा फोकस हमें मिल गया, रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, then we will find the answer of that question. Now how to form a good research question. Good research question is smart means it is specific, it is measurable. अब रिसर्च क्वेश्चन भी ऐसा होना चाहिए जो आप एक टाइम लिमिट में जिसको आंसर कर सको. ठीक है, it is measurable, it is achievable, it is relevant and obviously it is time bound. Okay, for example simple topic है, let screen time and students. तो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ से क्या आ गया, does screen time affect the academic performance of college students? No.
टॉपिक क्या हो गया हमारा, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स टॉट यूजिंग ऑनलाइन क्विजेस बेटर देन दोस टॉट ट्रेडिशनली। ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक चूज किया। ठीक है, लाइक फर्स्ट टॉपिक स्क्रीन टाइम एंड स्टूडेंट्स। स्क्रीन टाइम एंड स्टूडेंट्स पे हमने क्या क्वेश्चन क्या बना दिया कि डज स्क्रीन टाइम अफेक्ट्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। अब आप सपोज ये टॉपिक आप उसमें डाल देते हो अपने गूगल में। ठीक है, तो गूगल में आप डाला आपने, उसमें स्टडीज के जो भी हो रखी हैं, सर्वेस हो रखे हैं, वो आ जाएंगे, सारे पेपर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया, सारे पेपर्स चेक किए कि किसी में कॉलेज स्टूडेंट्स पे हो रहा है, किसी में स्कूल स्टूडेंट्स पे हो रहा है, बट रूरल एरियाज के स्कूल्स या रूरल एरिया के कॉलेजेस पे नहीं हो रही है स्टडी। तो आप अपने टॉपिक में डाल सकते हो, डज स्क्रीन टाइम अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ रूरल एरिया स्टूडेंट्स और रूरल कॉलेज स्टूडेंट्स, इस टाइप से। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। Now, what is review of literature? It is a summary of existing research work related to your topic. रिव्यू लिटरेचर में क्या करना है, अगेन वही आपने रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, थीसिस पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो। ठीक है, उससे रिलेटेड आपने सारा बेसिक्स पढ़ना है, एग्जिस्टिंग स्टडीज क्या हो रखी हैं वो पढ़नी है, रिपोर्ट्स आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, उससे क्या होएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बट which already done what you have to do। ठीक है, क्या पहले हो चुका, आपने क्या करना है। ठीक है, क्या उसमें मिस हो गया है। सो इट इज अ समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च वर्क रिलेटेड टू योर टॉपिक। नो व्हाई डू वी डू रिसर्च और लिटरेचर रिव्यू? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो पहले से हो चुका है। अगर सेम काम हमने रिपीट कर दिया तो क्या है, हमारा रिसर्च पेपर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट वर्क इज ऑलरेडी पब्लिश्ड। सेकेंड थिंग, टू अवॉइड रिपीटिंग ओल्ड वर्क। और रिपीटिशन, हाँ, अगर आपने डिफरेंट मेथड से किया है वो चीज, सेम रिजल्ट्स फाइंड किए हैं बट यू हैव अप्लाइड डिफरेंट मेथड, तो आपका वो पब्लिश हो जाएगा। सो यू हैव टू अवॉइड रिपीटिंग ओल्ड वर्क टू लर्न व्हाट मेथड्स अदर यूज्ड। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि बाकियों ने कौन से मेथड यूज किए हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड जो है अभी तक यूज नहीं हुआ है, दैट यू विल लर्न व्हाट मेथड यू हैव टू फॉलो। टू फाइंड गैप्स, तो कहाँ पे गैप रह गए स्टडी में, ऑब्वियसली जितने भी कोई भी आप स्टडी कर लो उसकी कोई ना कोई गैप्स, कोई ना कोई लिमिटेशंस होती होती है। ठीक है, तभी वो कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट उसका नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट रिसर्च होती है, कोई दूसरा बंदा करता है या आप ही करते हो, उस गैप को फिल करते हो, फिर नेक्स्ट उसमें जो लिमिटेशन रह गई है फिर नेक्स्ट वो अगला रिसर्च पेपर आपका बन जाता है। तो टू फाइंड गैप्स फॉर न्यू रिसर्च, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर स्टडी। Now, what are the steps in literature review? Search for research paper, book chapter, then read abstracts and select relevant studies. Note key findings, methods, variables and limitations. Compare and organize information. Write a summary in your own words. ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी थी कि अपने वर्ड्स में लिखो, इसीलिए बोलते थे क्योंकि एट द एंड जो रिसर्च पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, वो भी आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा, वो सेलेक्ट नहीं होएगा। तो सिंपल एग्जांपल इज सपोज इफेक्ट ऑफ योगा ऑन स्ट्रेस लेवल्स। स्टडी फर्स्ट क्या है, वी फाउंड योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस इन वर्किंग वुमेन। स्टडी 2 क्या शो कर रही है, फाउंड योगा इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। स्टडी 3 क्या शो कर रही है, फाउंड स्मॉल इफेक्ट ऑन मैन। नेक्स्ट स्टडी 4 यूज्ड अ सैंपल साइज ऑफ 50 ओनली। यू समराइज ऑल एंड कनेक्ट देम। उनको समराइज कर दो, आपस में उनका कनेक्शन बिठा दो, तो क्या हो जाएगा, आपका एक रिव्यू पेपर हो जाएगा। Identification of research gap. So what is research gap? Again, a research gap is something that has not been studied properly
or needs further exploration. So you find a gap after reviewing literature. जब तक आप literature review नहीं करोगे, obviously you can't find the gap. So types of research gaps are population gap. Suppose no study on a specific group, like a specific age group पे study miss है, ठीक है, 20 years तक हुई है, 20 to 40 पे नहीं हुई है, 40 to 60 पे हुई है, ठीक है, तो वो गैप आ गया. मेथड गैप, ओल्ड मेथड यूज्ड, ठीक है. रीजन गैप, नो स्टडी इन अ पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया पे, नॉर्दर्न एरिया पे, साउदर्न एरिया पे ये स्टडी नहीं हो रखी है, ठीक है. वेरिएबल गैप, सम वेरिएबल्स आर इग्नोर्ड, कुछ टर्म्स उसमें डिस्कस ही नहीं करी. टाइम गैप, इट स्टडीज वेरी ओल्ड, ठीक है, इस चीज को काफी टाइम हो गया, ये उसके बाद किसी ने इसको, इस टॉपिक को उठाया ही नहीं है, तो उसको नए तरीके से, न्यू मेथड से उठा के उसको फिर से स्टडी करना और उसके रिजल्ट्स फाइंड करना. Now simple example, after reviewing 10 papers on yoga and stress, you find 8 studies were done on adults, 2 on elderly people, but none on college students. Okay? So that is the gap, that is no study on college students. Like another example, impact of AI tools on student learning. After literature review, क्या हमने देखा, many studies on engineering students, few on science students, but none on mathematics students. So gap is no research on AI tool impact on mathematics learners. Now next is meta-analysis. What is meta-analysis? It is a statistical technique where results from many research studies are combined to find a common conclusion. क्या कर, मेटा एनालिसिस क्या है, काफी सारी रिसर्च स्टडीज के रिजल्ट्स हमने लिए, उनको कंबाइन किया और एक कॉमन कंक्लूजन निकाला, दैट इज मेटा एनालिसिस. तो इट इज यूज्ड व्हेन मेनी स्टडीज हैव बीन डन ऑन द सेम टॉपिक. सेम टॉपिक के काफी सारी स्टडीज हुई हैं, बट ऑब्वियसली वो सबने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से की हैं. रिजल्ट्स आर मिक्स्ड और अनक्लियर. क्लियर रिजल्ट कहीं पे भी नहीं मिला हमें. तो व्हाई मेटा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, इट गिव्स अ मोर एक्यूरेट कंक्लूजन. ठीक है, जब हम सबको कंबाइन कर देंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट कंक्लूजन मिलेगा हमें. इट इंक्रीजेस द सैंपल साइज. सैंपल साइज ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया. अगर 4 स्टडीज आर देयर, सबने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिया, तो सबको हमने कंक्लूड कर दिया, वो सैंपल साइज हमारा सभी को ऐड करके कैलकुलेट होएगा. इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एविडेंस and it helps in policy making also. A simple example is, suppose you find 5 studies about does online teaching improves learning. Each study show, study 1 में क्या मिला हमें, yes मिला. study 2 क्या no शो कर रही है. study 3 क्या कर रही है, yes बता रही है. study 4 क्या बता रही है, little improvement is there. and study 5 is again yes is there. So using meta-analysis, you combine all the results statistically and you will get the final conclusion, that is online learning improves performance by 15% on average. Again वही एक simple example है, 3 studies ले ली, study A, B, C, इफेक्ट्स ऑन मार्क्स 10% इंक्रीज हुए, 4%, 15%. तो मेटा एनालिसिस किया गया, हमने तीनों को ऐड किया, 3 से वही मीन फाइंड किया, दैट इज 9.67% इंप्रूवमेंट इज देयर. तो तीनों स्टडीज को कंबाइन करके उसकी एवरेज निकाल दी, दैट इज द मेटा एनालिसिस. तो डिफाइनिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, योर स्टडी आंसर should be smart. For example, does screen time affect academic performance? What is review of literature? It is summary of existing work, helps to understand what is known, and it helps to find research gap. And what is identification of research gap? What is missing in existing studies? For example, no study in college students,
forms the base of your research. Meta analysis क्या है? It combines results of many studies. It gives stronger statistical conclusion. And it, for example, 5 studies combines, that is online learning improves performance. This is a summary. Thank you.